Hello dear students. Today we are going to revise parabola. So what is parabola? Parabola is the locus of a point which is moving in such a way that the distance of any point on the parabola from focus and from directrix is always equal. Okay. So यदि आपको इसका लोकस फाइंड करना हो तो लोकस हम कैसे फाइंड करते हैं? कोई जनरल पॉइंट एज्यूम करेंगे P पॉइंट एंड लेट अस अज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ P point is h comma k and focus is alpha comma beta and focus is S point. Then the distance of point P from S and from the directrix, let us suppose this point is M point. Then by the definition we can say that PS is equal to PM. So let us suppose the equation of directrix is Lx plus My plus N is equal to 0. So PS, how can we find PS? The distance between these 2 points by using distance formula, so root under h minus alpha whole square plus k minus beta whole square is equal to Pm, distance of point from a line. So formula is mod of L into h plus m into k plus n. So mod of LH plus mk plus n divided by root under coefficient of x square plus coefficient of y square. So divide by L square plus m square. Now what we will do, just squaring both the sides और इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ h एंड k. बट आपको इक्वेशन फाइंड करना होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, सो जस्ट रिप्लेस h बाई x एंड k बाई y. देन यू विल गेट द इक्वेशन पैराबोला इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई. ठीक है. तो जैसे कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 1, -1 एंड डायरेक्ट्रिक्स x plus y minus 7 is equal to 0. So focus point is given 1, -1 and the directrix x plus y minus 7 is equal to 0. तो सेम टाइप से सॉल्व करना है. लेट अस सपोज पॉइंट P moving on the parabola, coordinate of this point h comma k, distance of this point P from focus PS from the directrix PM. So by the definition of parabola, PS is equal to PM. PS कैसे फाइंड करना? अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सो रूट अंडर h माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस k माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स. तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ h प्लस k माइनस 7 डिवाइड बाई रूट अंडर कोफिशेंट ऑफ x 1, सो 1 स्क्वेयर प्लस कोफिशेंट ऑफ y अगेन 1, तो 1 स्क्वेयर, 1 प्लस 1. अब आप क्या करोगे? जस्ट स्क्वायर करना बोथ दी साइड्स, मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जस्ट आपको h को रिप्लेस करना है x से और k को रिप्लेस करना y से. नेक्स्ट देयर आर फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू द पैराबोला, यू शुड नो अबाउट देम. ओके, सो फर्स्ट टर्म इज द फोकस ऑफ पैराबोला. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, like this is the fixed point for the locus of the parabola, and then next term is directrix of parabola. Okay. So what is directrix? Fixed line, and this is our parabola. So next term is axis of parabola or axis of symmetry. So what is axis of parabola? A line which is passing through focus and perpendicular to the directrix is called axis of parabola. This line is also known as axis of symmetry. ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि parabola is symmetric about this axis. You can observe from the figure that the parabola is symmetric about this axis. So that's why it is called as axis of symmetry also. Okay. Next term is the vertex of parabola. So vertex is the point of intersection of parabola and the axis. Okay. So you should know one more thing about the vertex. Like vertex is the midpoint of focus and the point where axis intersect with the directrix. So let us assume if focus is S and this point is M point and vertex is V, then V is the midpoint of S and M. Okay, good. और हम ऐसा भी बोल सकते हैं, the distance of vertex from focus is equal to distance of vertex from the directrix. Okay. Next term is the chord of the parabola. So what is chord of parabola? A line which is intersecting parabola at two distinct points is called chord of the parabola. Simple.
Okay, there is a special type of chord which is perpendicular to the axis of parabola. So any chord which is perpendicular to axis of parabola is called the double ordinate. Okay, so any chord which is perpendicular to the axis of parabola is called the double ordinate. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? This is double ordinate. And there is a special type of double ordinate. Okay, what is that? A chord which is perpendicular to the axis of parabola and passing through the focus of parabola. Okay, this chord is known as the latus rectum. Okay, so latus rectum पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज latus rectum. A chord which is perpendicular to the axis of parabola and passing through focus. Okay, next term is the focal chord. So focal chord means जैसा नेम है वैसे हम समझ सकते हैं फोकल कॉर्ड मीन्स एनी कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला. ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फोकल कॉर्ड. ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड पैराबोला? सो स्टैंडर्ड पैराबोलास आर द पैराबोला फॉर विच द वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड द एक्सिस इज आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो सबसे पहले तो वर्टेक्स तो ओरिजिन होना चाहिए और एक्सिस क्या हो सकता है? आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो ऐसे टोटल कितने पैराबोला पॉसिबल हो सकते हैं? टोटल 4 पैराबोला पॉसिबल हो सकते हैं. फर्स्ट टाइप से राइट साइड ओपनिंग, सेकंड अपवर्ड ओपनिंग, थर्ड लेफ्ट ओपनिंग, फोर्थ डाउनवर्ड ओपनिंग. ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. जैसे हमने लिया राइट साइड ओपनिंग पैराबोला, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ राइट साइड ओपनिंग पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, इक्वेशन इस टाइप से होगा. और इसका फोकस पॉइंट क्या होगा? तो फोकस पॉइंट होगा a,0. ठीक है, यहाँ पर लाई करेगा एक्स एक्सिस पर. और यदि हम बात करें वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स तो पहले से ही हमने डिस्कस कर लिया कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो वर्टेक्स तो आपका क्या होने वाला है? 0,0 ओरिजिन. एक्सिस क्या होगी? क्लियरली दिख रहा है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्स एक्सिस. सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस. और यदि इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल टू 0. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स. अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होगी? तो पैराबोला इस टाइप से, फोकस यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी ना. ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमने इस टाइप से ड्रॉ किया. और इसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू -a. क्योंकि डिस्टेंस a है, तो सिमिलरली वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी a होना चाहिए. बट हम कहाँ आ रहे? ओरिजिन के लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा? -a,0. तो इसलिए इक्वेशन x इज इक्वल टू -a. सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू -a और x प्लस a इज इक्वल टू 0. फोकस पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया, a,0. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा इस केस में? 4a. इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो हाफ कितना होगा? 2a. तो मैं बोल सकते हैं टोटल 4a, इतना हो गया 2a, और रिमेनिंग हाफ भी 2a. तो यदि आपको इंड पॉइंट फाइंड करना है तो इंड पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 2a. सो a,2a. और यहाँ पर क्या होगा? x कोऑर्डिनेट तो a होगा बट y कोऑर्डिनेट -2a. तो इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a, प्लस -2a. ठीक है, अब इसे सेम टाइप से यदि लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला होगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. उसमें क्या था? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पर आ जाएगा -4ax. वर्टेक्स तो अभी भी क्या रहेगा? 0,0. तो वर्टेक्स हो गया 0,0. एक्सिस की बात करें तो स्टिल अभी भी एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस. और इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन बोलें तो y इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगा. अब इस केस में डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होगा? यहाँ पर इस टाइप से लाई करेगा. और ये जैसे हमने फोकस बोल दिया यहाँ पर -a,0 होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट से पास करेगी a,0 से. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a. तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a. फोकस -a,0. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑलवेज 4a रहेगा, कुछ भी टाइप का पैराबोला हो. राइट साइड ओपनिंग, लेफ्ट साइड ओपनिंग, अपवर्ड डाउनवर्ड, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a. इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम में क्या इफेक्ट आ जाएगा? यहाँ पर क्या होने वाला है कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा जैसा प्रीवियस केस में देखा था. ठीक है ना. तो इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? -a, प्लस -2a. ओके, अब ऐसे ही थर्ड पैराबोला पर हम मूव करते हैं. थर्ड पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला.
और यदि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। उसमें क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स अभी भी क्या रहने वाला है, 0,0। तो वर्टेक्स 0,0। एक्सिस, अब इसमें एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और हम इसको बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 0। अब यदि हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर लाई करेगा, इस टाइप से यहाँ होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू माइनस ए। सो y इज इक्वल टू माइनस ए। फोकस पॉइंट, फोकस y एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा 0,a। सो फोकस 0,a। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अभी भी 4a रहेगा, बट एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम चेंज हो जाएंगे। इसमें देखो, यदि हम बात करें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम तो 4a होता है, 2a हाफ। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2a होगा, y कोऑर्डिनेट a, और यहाँ पर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट माइनस 2a एंड y कोऑर्डिनेट a। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2a, a। ओके, so last type of parabola is downward opening parabola. In downward opening parabola, equation is x square is equal to minus 4ay. Okay, and vertex तो अभी भी 0,0 रहेगा, स्टैंडर्ड पैराबोला है, सो वर्टेक्स 0,0। एक्सिस आप देख सकते हैं, एक्सिस इज वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस। इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन वी कैन से एक्स इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स से पहले हम डिस्कस करते हैं फोकस। तो फोकस यहाँ पर होगा -a,0। तो फोकस पॉइंट -a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस टाइप से लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए, सो इसको हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू ए। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू ए। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अभी भी 4a। इन पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, तो इन पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम क्या हो जाएंगे, देखो 2a, 2a। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा 2a, बट y कोऑर्डिनेट माइनस ए। इसमें x कोऑर्डिनेट माइनस 2a, y कोऑर्डिनेट माइनस ए। सो इन पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम प्लस माइनस 2a कॉमा माइनस a। In this question, it is given that the area of the triangle formed by the line joining the vertex of parabola x square is equal to 8y to the extremities of its lattice rectum is. So let us suppose these are the coordinate axes and equation of parabola is x square is equal to 8y. So this is like x square is equal to 4ay type of parabola. So we can say this is the upward opening parabola. Okay, इस टाइप से parabola हो गया। Now we need to find the area of the triangle, and the area of the triangle for which one vertex is the vertex of the parabola. So one vertex तो हो गया origin point O 0,0, and remaining two vertices lies on the end point of the lattice rectum. So suppose this is lattice rectum AB. So end point of lattice rectum पर remaining two vertices हो गई। तो triangle हम कुछ इस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं, triangle AOP. Now we need to find the area of triangle AOP. तो एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए बी इज लेटेस्ट रेक्टम, इट मीन्स दिस पॉइंट मस्ट बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y. सो इफ यू विल कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देन ए विल बी इक्वल टू 2. सो फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 4a, तो 4a मीन्स 8 हो जाएगा. ओके, सो अब आपको फाइंड करना एरिया. तो एरिया के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इफ ए बी इज द बेस देन दिस मस्ट बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ. बेस हो गया ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू 8, एंड हाइट कितना हो जाएगा, इफ दिस पॉइंट इज 0,2 तो हाइट कितना हो जाएगा 2 यूनिट. सो 2. सो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट. फोर्थ पार्ट इज करेक्ट. ओके, सो इस टाइप से हमने कितना ईजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. बस यदि आपको ये पता होता है कि इस टाइप का पैराबोला है और इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो इस सब से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब हम पढ़ते हैं शिफ्टेड पैराबोला पर. सो व्हाट इज शिफ्टेड पैराबोला. तो जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला में हमने क्या डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड पैराबोला is kind of parabola for which vertex is origin and axis is either x axis और y axis. अब हमने क्या किया कि पैराबोला को शिफ्ट किया, इस टाइप से शिफ्ट किया दैट एक्सिस
आर पैरेलल टू आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो एक्सिस होगा वो किसी ऐसे पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, जस्ट ओनली पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस टाइप से यदि एक्सेस हो तो हम इसको बोलते हैं शिफ्टेड पैराबोला। तो शिफ्टेड पैराबोला में भी 4 कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड पैराबोला में डिस्कस किया। तो फर्स्ट कैटेगरी हमने कंसिडर किया है एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड राइट साइड ओपनिंग। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेट अस सपोज इनिशियली कोऑर्डिनेट एक्सिस थी हमारी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब हमने एक शिफ्ट किया इस टाइप से, तो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस कन्वर्ट हो गई कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि पैराबोला क्या होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला होगा किसके लिए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एक्सिस के लिए। तो इसका इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या होना चाहिए, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स। बट यदि आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म्स में फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको रिलेशन पता होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दैट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। ठीक है, तो बस इसका हम यूज़ करके एक्चुअल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पैराबोला क्या होगा, y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। तो जो इक्वेशन था उसमें हमने क्या किया, कैपिटल Y को रिप्लेस कर दिया y माइनस के से, कैपिटल X को रिप्लेस कर दिया x माइनस एच। तो इस टाइप के जो पैराबोला होगा इसका वर्टेक्स क्या होगा, h के। अब आपको रिमेनिंग पॉइंट्स में क्या करना है कि जो आपका इनिशियली जैसे हम स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए देखते थे, जो भी पॉइंट आता था उस पॉइंट के लिए आपको क्या करना है कि x कोऑर्डिनेट में h ऐड करना है और y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर देना है। तो जैसे हम एक्सिस की बात करें तो यदि इस टाइप का पैराबोला होता है तो इसके लिए एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस बोलते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन हम बोलते हैं y इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 ना होकर के क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस के और y इज इक्वल टू के। ठीक है ना। सिमिलरली यदि हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर कहीं पर लाई करेंगे, और यदि स्टैंडर्ड पैराबोला होता है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। बट यहाँ पर शिफ्टेड पैराबोला है तो हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड करने वाले हैं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एच। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एच। फोकस पॉइंट की यदि बात करें तो फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट स्टैंडर्ड पैराबोला में होता है a, 0। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट क्या आएगा, a प्लस एच, 0 प्लस के। ओके, अब यदि हम बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो देखो हमने क्या किया, पैराबोला तो सेम है, बस हमने पोजिशनिंग चेंज की। तो पोजिशनिंग चेंज करने से शेप चेंज नहीं होगा पैराबोला का, हमने बस यहाँ पर था ऐसे पैराबोला और इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया बस इस डायरेक्शन। तो लेटस रेक्टम का लेंथ तो अभी भी सेम ही रहेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम स्टिल 4a, बट एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम चेंज हो जाएंगे। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में क्या होते हैं, a कॉमा प्लस माइनस 2a। तो यहाँ पर क्या आएगा, e प्लस एच कॉमा प्लस माइनस 2a प्लस के, इस टाइप से। तो हमने देखा कि आपको क्या करना है कि सब चीज़ें मेमोराइज नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि यदि स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब क्या करना है, इस कैपिटल वाई को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल वाई, वाई माइनस के, एंड कैपिटल एक्स को कन्वर्ट किया हमने स्मॉल एक्स माइनस एच। और बाकी जो भी पॉइंट्स ओरिजिनली स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए आते हैं उसमें आपको क्या चेंजेस करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड करना है एंड वाई कोऑर्डिनेट में के ऐड करना है, बस सिंपल। अब जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। सो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला। तो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a कैपिटल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी, y को हम रिप्लेस करेंगे y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a, कैपिटल x को रिप्लेस किया x माइनस एच से। बस वर्टेक्स सभी 0,0 होनी चाहिए थे, बट इसमें क्या आएगा 0 प्लस एच, सो एच एंड 0 प्लस के। एक्सिस यहाँ पर अभी भी यदि स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, या फिर इक्वेशन के टर्म्स में वाई एक्सिस, और सॉरी वाई इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस और y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस के और y इज इक्वल टू के। अब यदि हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है इस टाइप के पैराबोला में, x इज इक्वल टू a स्टैंडर्ड पैराबोला में होता है, बट ए स्टैंडर्ड तो नहीं है, शिफ्टेड है, तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट में h ऐड करना। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस एच। यदि हम फोकस की बात करें
तो फोकस क्या होता है स्टैंडर्ड पैराबोला में इस टाइप का होता है, यदि लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला तो हम बोलते हैं -a,0, बट यहाँ पर क्या बोलेंगे -a + h, k। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी भी 4a रहेगा, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चेंज हो जाएगा। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा -a + h, ±2a + k। ठीक है ना। अब आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली हमें किस टाइप से चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो यदि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है तो क्या करते हैं हम, अपवर्ड ओपनिंग यदि स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, x² = 4a कैपिटल Y। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगा, x - h होल स्क्वेयर = 4y - k। बस सिंपल। वर्टेक्स 0,0 है तो 0 में h ऐड करेंगे तो h, एंड 0 में k ऐड करेंगे तो h + k। एक्सिस की बात करें तो इस टाइप के अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला के लिए एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस, और इक्वेशन के फॉर्म में हम क्या बोलते हैं x = 0, बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे x = h। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए y = -a, बट यहाँ पर क्या आएगा y = -a + k। यदि फोकस पॉइंट की बात करें तो फोकस क्या होना चाहिए, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला स्टैंडर्ड तो फोकस 0, a, बट शिफ्टेड पैराबोला के लिए 0 + h, सो h एंड a + k। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी भी 4a होगा, बट इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस काइंड ऑफ पैराबोला विल बी, यदि अपवर्ड ओपनिंग स्टैंडर्ड पैराबोला होता है तो इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम क्या बोलते हैं 2a, a एंड -2a, a। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, शिफ्टेड पैराबोला में x कोऑर्डिनेट में h ऐड करना है एंड y कोऑर्डिनेट में k। तो क्या हो जाएगा +-2a + h, a + k। ठीक है, तो शिफ्टेड पैराबोला में बस यही करना है कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला था हमारा उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन ऐसे लिखना है, फिर कैपिटल X और कैपिटल Y को चेंज कर देना है। कैपिटल X को हम रिप्लेस करेंगे स्मॉल x - h से, एंड कैपिटल Y को रिप्लेस कर देंगे y - k से। और जो भी पॉइंट की बात होगी तो पॉइंट में क्या करना है, x कोऑर्डिनेट में h ऐड करना है एंड y कोऑर्डिनेट में k ऐड करना है। और यदि हम बात करें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x² - 4x - 8y + 12 = 0। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको उस एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, या तो y - k होल स्क्वायर = 4x - h इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर x - h होल स्क्वायर = 4a y - k इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या x² है, ठीक है, और x भी है, कांस्टेंट है, और y ओनली लीनियर फॉर्म में। इट मीन्स x - h होल स्क्वायर = 4a y - k इस टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर -4a y - k। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बनाना पड़ेगा x - h होल स्क्वायर वाला फॉर्म। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² - 4x को किया, फिर हम क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर यदि फॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, तो 4 को किया हाफ तो आ जाएगा 2 स्क्वायर हमने ऐड किया एंड 2 स्क्वायर सेपरेट किया, -8y एज इट इज़ + 12 अगेन एज इट इज़ = 0। अब हम ये फर्स्ट 3 टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो इसको बोल सकते हैं x - 2 होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8y यदि राइट हैंड साइड जाएगा तो +8y एंड +12, और ये हो गया -4, तो कितना बचेगा +8, बट राइट हैंड साइड जाएगा तो -8। सो x - 2 होल स्क्वायर = 8 हमने कॉमन लिया y - 1, तो किस में कन्वर्ट हो गया, x - h द होल स्क्वायर = 4a y - k। सो अब आपको क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a, और यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो 4a इज इक्वल टू कितना है 8। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8 यूनिट। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है, एक्सिस तो एक्स एक्सिस हो गया। इफ इट्स वर्टेक्स एंड द फोकस आर एट अ
डिस्टेंस 2 and 4 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। तो पैराबोला किस टाइप से हो सकता है कि यहाँ पर हमने लिया एक्स एक्सिस और जो वर्टेक्स पॉइंट है वो है यहाँ पर 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, इट मीन्स पॉइंट 0 2,0, सॉरी दिस इज वर्टेक्स। और जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पर फोकस हो गया एस पॉइंट एंड एट ए 4 यूनिट डिस्टेंस, तो 4,0। तो पैराबोला हमारा किस शेप में हो जाएगा, ऐसे कुछ पैराबोला होगा, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट। तो अब आपको देखना है कौन सा पॉइंट पैराबोला पर लाई नहीं कर रहा, तो इसके लिए ऑब्वियसली पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पैराबोला के इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन फाइंड करना बहुत ईजी है, कैसे कि वर्टेक्स पॉइंट आपको मिल गया तो एक टाइप से शिफ्टेड पैराबोला हो गया, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन तो नहीं है, और ये किस साइड ओपनिंग है, राइट साइड ओपनिंग, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन किस टाइप का होगा, इक्वेशन होगा y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, इस टाइप की इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर h कॉमा के मीन्स वर्टेक्स पॉइंट क्या है 2,0, सो h इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब यदि हम बात करें 4a, तो a कितना होगा, सो वर्टेक्स टू फोकस जो डिस्टेंस होगा इसी को तो हम a बोलते हैं। तो डिस्टेंस किसके इक्वल है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 2 यूनिट है, तो 4a कितना हो जाएगा 8। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स माइनस 2। अब बस चेक कर लेते हैं कि कौन सा पॉइंट इस पर लाई नहीं करेगा। तो यदि हम ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन को चेक किया, एक्स इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, वाई इज इक्वल टू 2√6, ठीक है, सब्सटीट्यूट किया, सो 2√6 इस होल स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 6 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, यस इट इज सेटिस्फाइंग, इट मीन्स ए लाई कर रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, तो 6 स्क्वायर हो गया 36 इज इक्वल टू 8 इंटू, और यदि हमने x को 6 पुट किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 6, ओके, सो 36 और ए 48, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स बी पॉइंट जो पैराबोला पर लाई नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। समझ आया ना, ओके ठीक है। और ऐसे ही यदि आप सी ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑब्वियसली वो लाई कर रहा होगा। देखते हैं, सो वाई यदि हमने पुट किया 4√2, तो 4√2 स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 2 32 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स को यदि हमने पुट किया 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4, तो देखो 32 लाई कर रहा। तो ऐसे फोर्थ ऑप्शन भी सेटिस्फाई करेगा, ओनली बी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स बी पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दी पैराबोला। ईजी। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यदि आपको शिफ्टेड पैराबोला का नॉलेज है तो हम ईजिली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक्स एंड वाई को किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो थीटा के फॉर्म में, जैसे कि ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, और टी के फॉर्म में, ठीक है। सो जैसे कि पैराबोला की इक्वेशन है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके लिए आपको एज्यूम करना x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, ठीक है। सो यदि आप इस फॉर्म में एज्यूम करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और यहाँ पर पुट करेंगे तो ऑब्वियसली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। अब पैराबोला यदि लेफ्ट साइड ओपनिंग वाला हो गया, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू -80 स्क्वायर कॉमा वाई इज इक्वल टू 280, ठीक है। ये पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो हमें क्या करना है, इस पैराबोला और इस पैराबोला में क्या चेंजेस हुआ, जस्ट हमने एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया। तो यदि एक्स वाई को इंटरचेंज किया तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई को इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, तो इसमें क्या आएगा x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, ठीक है। और यदि हम लास्ट टाइप ऑफ पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला कंसीडर करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो इस केस में क्या होगा, तो एक कौन सा केस हो गया, जो ए वाला केस है इसके जस्ट ऑपोजिट हो गया। तो इसमें जो भी हमने कोऑर्डिनेट लिए इनको इंटरचेंज कर दो,
तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 280 कॉमा वाई इज इक्वल टू -80 स्क्वायर। सिंपल। अब यदि हम शिफ्टेड पैराबोला लेते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने पैराबोला लिया y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच, तो इस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो जो ओरिजिनली हमारे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे उसी टाइप से रहेगा, बस क्या करना है आपको, x कोऑर्डिनेट में h ऐड करना और y कोऑर्डिनेट में k ऐड करना है। तो हमने क्या किया, ए टी स्क्वेयर प्लस एच एंड y इज इक्वल टू 280 प्लस k, ऐसे हो जाएगा। और यदि आपका पैराबोला की इक्वेशन हो x माइनस एच होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a y माइनस के, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब आप मुझे बता सकते हैं, x इज इक्वल टू होगा 280 प्लस एच कॉमा वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर प्लस के। लेट P be the point 1, 0 and Q a point on the locus y square is equal to 8x. The locus of midpoint of PQ is, okay, so there is a point P 1, 0, 1, 0 means lies on the x-axis somewhere, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, एंड Q lies on the parabola itself, ठीक है। सो पैराबोला हमने देखा इक्वेशन इज y square is equal to 8x, so it is राइट साइड ओपनिंग पैराबोला, ओके। सो Q पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है पैराबोला पर, तो ऐसे एज्यूम कर लिया। नाउ वी नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लोकस ऑफ PQ, सो लेट अस सपोज द मिड पॉइंट इज M। सो इसका लोकस फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट एज्यूम किया h, k, ठीक है। अब Q पॉइंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, Q पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, तो Q पॉइंट को हम एज्यूम कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, then parametric form is 80 square comma 280, but here equation of parabola is y square is equal to 8x, so a is equal to 2, so Q point क्या हो जाएगा 2t square comma 4t, and P point 1, 0, mid point of PQ is our M point, तो हम क्या बोल सकते हैं, x coordinate like h is equal to x1 plus x2 by 2, so 2t square plus 1 by 2 and k is equal to 4t plus 0 by 2। अब देखो इक्वेशन जो लोकस का फाइंड करना वो इन टर्म्स ऑफ h के फाइंड करना, और उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए t। तो हम क्या ट्राई करेंगे, t को रिमूव करने का, ठीक है। t को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, k इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, ओके, और t इज इक्वल टू k by 2। नाउ वी कैन रिप्लेस t in this equation, so 2h is equal to 2 t square plus 1, now put t is equal to k by 2, ठीक है। so 2h is equal to 2 into k square by 4 plus 1, और 2h is equal to k square by 2 plus 1 multiply by 2 on both the sides, 4h is equal to k square plus 2, okay। now we can replace h by x or k by y, okay। so equation will be 4x is equal to y square plus 2, और इसको अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2, सो वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से हमने लोकस का क्वेश्चन सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टेंजेंट टू द पैराबोला। सो टेंजेंट टू द पैराबोला में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट, ओके। सो सपोज ये पैराबोला आपको ऐसे कुछ गिवन है और आपको फाइंड करना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 एंड x1, y1 इज लाइंग ऑन द पैराबोला, ठीक है। पैराबोला पर लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आउटसाइड पॉइंट हो या फिर इनसाइड द पैराबोला हो, नो, this point must be lying on the parabola। Then the equation of tangent is t is equal to 0। What is the meaning of t is equal to 0? So if we need to find equation of tangent at point x1, y1, then what we will do, we will replace x square
बाई x(x1), वाई स्क्वायर बाई y(y1) एंड x बाई x प्लस x1/2 एंड y बाई y प्लस y1/2। ठीक है, तो सपोज हमने पैराबोला लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट साइड ओपनिंग पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, 4a सेम टू सेम, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1/2 से। ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने और कोई पैराबोला ले लिया, सपोज हमने पैराबोला लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay काइंड का, तो इसमें भी यही करना है कि x(x1), इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t x(x1) इज इक्वल टू 4ay प्लस y1/2। बस ये याद रखना है आपको कि हमें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x(x1) से, वाई स्क्वायर y1, x प्लस x1/2, y प्लस y1/2। ओके, सो किसी भी टाइप का कर्व पैराबोला होगा उसमें हमें सेम टाइप से रिप्लेसमेंट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। वन मोर टाइम कि पॉइंट आपका कर्व पर लाई करना चाहिए, तब हम ऐसा बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्लोप फॉर्म, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप फॉर्म में सबसे पहले हम यदि स्टैंडर्ड पैराबोला कंसिडर करें, राइट साइड ओपनिंग लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ओके, m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप फॉर्म में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे स्लोप m हम फाइंड करना चाहते हैं। So if equation of parabola y square is equal to 4ax, then equation of tangent y is equal to mx plus a by m, and point of contact a by m square comma 2a by m, ये आता है हमारा point of contact। ठीक है, so अब यदि हम पैराबोला लें लेफ्ट साइड ओपनिंग, तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला में जस्ट आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में a को रिप्लेस कर देना माइनस ए से, क्योंकि माइनस ऐसा हम बोल सकते माइनस ए आ गया। सो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम। ठीक है, सिंपल। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे चेंज होता है, जैसे कि हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं ना। ठीक है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा माइनस ए बाई एम स्क्वायर, एंड y कोऑर्डिनेट 2a बाई एम स्टिल सेम रहेगा। ओके, फिर यदि हमने पैराबोला लिया अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, एक्स वाई को इंटरचेंज किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या चेंजेस करने हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक्स वाई को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पर आएगा एक्स और यहाँ पर आ गया वाई, और साथ में आपको रिप्लेस करना है एम को 1/m से। सो 1/m ए हो जाएगा इक्वेशन। क्या करना है, वन मोर टाइम, एक्स वाई को इंटरचेंज किया, सो एक्स वाई, फिर एम को रिप्लेस किया 1/m से। ओके, सो इस टाइप की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें भी क्या होगा, एक्स वाई को तो इंटरचेंज करना ही है, साथ में आपको m को भी रिप्लेस करना है 1/m से। सो आएगा 2am am स्क्वायर। ओके, अब यदि हम लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay मीन्स डाउनवर्ड ओपनिंग, तो इसमें क्या होगा, जस्ट आप क्या करो, ए को रिप्लेस कर दो माइनस ए से, सो माइनस ए एम ऐसा हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की यदि बात करें, सो 2am एंड माइनस am स्क्वायर हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, सो अब यदि आपका पैराबोला हो शिफ्टेड काइंड का, जैसे कि हमने ले लिया y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर क्या इफेक्ट आएगा। तो क्या करना है आपको कि जो इस टाइप का पैराबोला है राइट साइड ओपनिंग स्टैंडर्ड पैराबोला, इसमें इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो हम बस क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस के से, और x को रिप्लेस करना है x माइनस एच से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर शिफ्टेड पैराबोला y माइनस के इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस h प्लस a बाई m। ओके, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में भी सेम, x कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना है, h ऐड करना है, एंड y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है,
अब यदि पैराबोला हो आपका इस टाइप से x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y-k, तो हम किस टाइप की पैराबोला से कंपैरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप से पैराबोला से। तो इसमें भी आप क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना x माइनस एच से, सो x माइनस एच इज इक्वल टू 1/m y-k प्लस a इंटू m, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में भी सेम टाइप से 2am प्लस एच एंड am स्क्वेयर प्लस k। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ फ्रॉम JEEMS 2019, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो सबसे पहले हमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप का ये पैराबोला है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इट मीन्स अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो गया। ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इट मीन्स द टेंजेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बोल सकते हैं, tan थीटा। ओके, सो फॉर दिस काइंड ऑफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा है, x इज इक्वल टू 1/m इंटू वाई प्लस am। ठीक है, सो इसको यदि आप कंपेयर करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, सो a इज इक्वल टू तो 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2, और m की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 1/tan थीटा इंटू वाई प्लस 2 इंटू tan थीटा, एंड 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सो x इज इक्वल टू y इंटू cot थीटा प्लस 2 tan थीटा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, x is equal to y cot theta plus 2 tan theta, option number 1 is correct. Okay, next question. The tangent to the curve y is equal to x square minus 5x plus 5 parallel to this line also passes through the point. ठीक है, ये भी JEEMS 2019 का क्वेश्चन है। तो अब आपको टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, इट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस गिवन लाइन। तो सबसे पहले तो हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं, y 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ऐसे गिवन है, तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2, m इज इक्वल टू 2। इफ Okay, so if slope of this line is 2 and the given line is parallel to the tangent, it means slope of tangent will also be equal to 2. ठीक है, तो tangent का slope तो मिल गया। अब आपको क्या करना है, we need to identify the parabola, कि पैराबोला किस टाइप का होगा और इसके लिए हम कैसे स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई to make perfect square, so there is x square minus 5x, so we will add 5/2 square and subtract 5/2 square plus 5 as it is, so y is equal to, यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स को ध्यान से देखो तो इसको हम बोल सकते हैं x माइनस 5/2 होल स्क्वेयर माइनस 25/4 एंड प्लस 5। सो y इज इक्वल टू x माइनस 5/2 होल स्क्वेयर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 20 प्लस एंड माइनस 25, सो माइनस 5/4। और इसको यदि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x माइनस 5/2 स्क्वेयर इज इक्वल टू y प्लस 5/4। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराबोला। तो पैराबोला किस टाइप का आ गया, ये आ गया x माइनस एच होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। यदि इस टाइप का पैराबोला है तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है स्लोप फॉर्म में, क्या आप मुझे बता सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम बोलते हैं x माइनस एच इज इक्वल टू 1/m y माइनस के प्लस a इंटू m, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था। ठीक है, सो x माइनस एच के प्लेस पर क्या आ जाएगा, x माइनस 5/2, सो x माइनस 5/2 is equal to 1/m, slope is 2, so 1/2, and y minus k, तो y minus k के प्लेस पर आना चाहिए y plus 5/4, y plus 5/4 into
सॉरी प्लस ए इंटू एम. सो ए अब कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से कंपेरिजन वी कैन से लाइक 4a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है. सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4. सो 1/4 इंटू एम इज 2. सो 2. ठीक है. बस अब क्या करना है आपको, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली जो भी पॉइंट्स दिए गए इनको डायरेक्टली सेटिस्फाई करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है. ओके. तो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि 8 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड. तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये कैंसिल कर देगा, तो 4 इंटू वाई. सो 4y प्लस ये बचेगा 5 प्लस ये हो गया 1/2 और 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4. ओके. तो हम बोल सकते हैं दिस इज 8x इज इक्वल टू 4y प्लस 29. ठीक है, ये आ गया. अब 1/1 हम ऑप्शन चेक करते हैं. सपोज हमने स्टार्ट किया ऑप्शन नंबर ए से, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ 1/4 एंड 7/2. 1/4 कॉमा 7/2. तो x इज इक्वल टू 1/4 पुट करते हैं. सो 8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4 इंटू 7/2 प्लस 29. ऑब्वियसली इक्वल नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पर प्लस में 29 है और प्लस 4y करेंगे तो 8x और x हमने लिया बहुत ही कम 1/4, तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है. तो ए ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट. ओके. अब ऐसे हम जाते हैं बी ऑप्शन पर. तो बी ऑप्शन में क्या है, x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू 1/4. ठीक है. तो x को यदि हमने 7/2 पुट किया तो क्या होगा 8 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 प्लस 29. तो ये हो गया 4 से 28 इज इक्वल टू 30. तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है. अब हम गए थर्ड ऑप्शन पर. तो थर्ड ऑप्शन में तो x को नेगेटिव ही ले लिया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं. वैसे तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट 3 करेक्ट नहीं है, बट फिर भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं. 1/8 एंड -7. सो x इज इक्वल टू 1/8 पुट करो यहाँ पर, 8 इंटू 1/8 और y इज इक्वल टू -7. -7 29. तो 1 इज इक्वल टू -7 -28 प्लस 29. येस, 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया. इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो इसमें हमने क्या किया है, बस सबसे पहले तो स्लोप फाइंड किया. फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड की, पहले तो हमने पैराबोला को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में फाइंड किया, फिर पॉइंट को सेटिस्फाई किया और हमारा आंसर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत जेईई मेंस में रिपीट होते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने का इस क्वेश्चन का. The equation of common tangent to the circle x square plus y square minus 6x is equal to 0 and the parabola y square is equal to 4x is. कॉमन टेंजेंट पर बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमने एक पैराबोला लिया, इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम पहले बोलते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m. तो m स्लोप की टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, और इसके लिए a क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. यदि आप कंपेरिजन करोगे तो a आ जाएगा 1, सो 1/m. अब हमने इसको किया सिंप्लीफाई, तो m से मल्टीप्लाई करते हैं. सो my इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एम स्क्वायर एक्स माइनस my प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ऐसा हो गया. ठीक है. अब आपको गिवन है दिस टेंजेंट इज ऑल्सो द टेंजेंट टू दिस सर्कल. यदि सर्कल पर टेंजेंट हो कोई लाइन तो हम क्या बोलते हैं, the perpendicular distance from center to the tangent is equal to radius of the circle. तो सर्कल के बारे में पहले स्टडी करते हैं. सर्कल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x इज इक्वल टू 0. सो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 3,0 एंड रेडियस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3. तो यदि हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट पर, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 3 यूनिट. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर x is equal to 3, so 3m square, y 0, so minus 0 plus 1 divide by root under coefficient of x is m square, so m square square m to the power 4 plus coefficient of y minus m, तो minus m square करेंगे तो m square is equal to 3. ओके. नेक्स्ट स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड, यदि हम बोथ दी साइड स्क्वेयर करते हैं तो ये हो जाएगा 3m square plus 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m to the power 4 प्लस m square. इसका रूट रिमूव हो गया.
स्क्वायर को ओपन किया तो 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 9m टू द पावर 4 प्लस 9m स्क्वायर। 9m टू द पावर यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 3m स्क्वायर होल स्क्वायर होगा ना, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया तो कितना बचा आपके पास, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। स्लोप आ गया हमारे पास। अब स्लोप आ गया, बस स्लोप की वैल्यू आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या फिर हम चाहें तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो यदि हमने पुट किया m इज इक्वल टू 1/√3, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 1/√3x प्लस a/m, सो √3 ये हो गया। √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3y इज इक्वल टू x प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो √3y इज इक्वल टू x प्लस 3, हाँ ऑप्शन मैच कर गया, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इस टॉपिक पर सॉल्व कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज if the common tangent to the parabola is y square is equal to 4x and x square is equal to 4y also touches the circle x square plus y square is equal to c square, then c is equal to। तो सबसे पहले तो टेंजेंट इन दोनों पैराबोला पर कॉमन होनी चाहिए, फिर वही सेम टेंजेंट सर्कल पर भी टेंजेंट। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने पैराबोला की हेल्प से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ओके, सो फॉर दिस काइंड ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, और यहाँ पर a है 1, क्योंकि यदि हम कंपेयर करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो ये आ जाएगा 1। सो y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m। और यदि इस टाइप के पैराबोला के लिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें स्लोप फॉर्म में, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/m y प्लस a इज 1 into m। ठीक है, अब कॉमन टेंजेंट होने के लिए दोनों टेंजेंट सेम टू सेम होने चाहिए ना, तो सेम टू सेम के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन के लिए हम ट्राई करते हैं कि जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में है ना, तो इसको भी उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया m से, सो m इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एम स्क्वेयर, फिर हमने बोला y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वेयर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 बाई कंपेरिजन what can we say, because these are two common tangent, तो दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू एम एक्स, 1/m माइनस एम स्क्वेयर, इट मीन्स 1/m इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वेयर होना चाहिए। और हम बोल सकते हैं माइनस एम क्यू इज इक्वल टू 1 और एम क्यू इज इक्वल टू -1, सो m इज इक्वल टू -1। तो फाइनली जो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू -x -1 और x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द कॉमन टेंजेंट टू द बोथ द पैराबोलास। अब यही टेंजेंट सर्कल पर भी कॉमन है। ठीक है, तो यदि सर्कल पर भी टेंजेंट है तो फिर से वही सेम प्रॉपर्टी, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से जो हम सेंटर के बारे में बोल सकते हैं वो ये कि सेंटर विल बी द ओरिजिन एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज सी यूनिट। यदि हम सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 कोफिशिएंट ऑफ वाई 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू द c, क्योंकि c रेडियस है। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1/√2। ओके, सो c इज इक्वल टू 1/√2, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का, इससे पहले कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉमन टेंजेंट का, जो कि अभी जेईई मेंस में बहुत रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसके बाद हम मूव करेंगे नॉर्मल। देयर इज ए प्रॉपर्टी अबाउट पैराबोला, इफ वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट to the parabola from outside point, then these two perpendicular tangent will intersect at the directrix of the parabola। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड द इक्वेशन और द लोकस ऑफ अ पॉइंट
which is moving in such a way that if we draw two tangents from that particular point, then tangent should be perpendicular. It means they are just asking the equation of directrix of parabola. Okay, so जैसे इक्वेशन दिया गया है आपको, if two tangents drawn from point P to the parabola y square is equal to 4x are at right angles, then locus of P is. तो आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. y square is equal to 4x, दिस इज राइट साइड ओपनिंग पैराबोला, y square is equal to 4x से कंपेयर करेंगे, सो a is equal to 1. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x is equal to -a और x is equal to -1. सो अवर आंसर इज थर्ड पार्ट ओनली. ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन बन गया. यदि आपकी प्रॉपर्टी पता नहीं होती फिर आप लोकस से सॉल्व करने जाते, काफ़ी लेंदी होती. ओके, सो नेक्स्ट इज नॉर्मल टू द पैराबोला. सो व्हाट इज नॉर्मल, सो लेट अस सपोज दिस इज अवर राइट साइड ओपनिंग पैराबोला और यहाँ पर कोई पॉइंट P है. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x1, y1. ओके, and we draw tangent to this parabola at point x1, y1 is types. So a line which is perpendicular to the tangent of parabola at its point of contact is called normal to the parabola. ठीक है, so tangent पर point of contact पर perpendicular line को हम क्या बोलेंगे, normal. So this is normal to the parabola. Okay, if equation of parabola is y square is equal to 4ax and we need to find equation of normal at point x1, y, then how can we find? Okay, so जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखा यहाँ पर कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे. ओके, सो इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 4ax प्लस x1 बाई 2. ओके, और y इज इक्वल टू 2a बाई y1 इंटू x प्लस 2ax1 बाई y1. तो यदि हम फाइंड करना चाहें स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू 2a बाई y1. Now we know that tangent is perpendicular to normal at point of contact. So slope of normal कैसे find कर सकते हैं, m1 into m2 is equal to -1 और m2 is equal to -1 by m1. So slope of normal क्या हो जाएगा, slope of normal will be reciprocal and minus times the slope of tangent. So minus y1 by 2. तो equation of normal at x1, y1 is y minus y1 is equal to minus y1 by 2a x minus x1. ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले जैसा लर्न कर सकते हैं. यदि आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो कि फॉर्मूला आता कैसे, तो मैंने आपको ये डेरिवेशन बता दिया. तो इसी टाइप से किसी भी कैटेगरी का पैराबोला हो, जैसे कि लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला, राइट साइड ओपनिंग पैराबोला, तो हम सेम वे से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं एट अ पॉइंट. ओके, तो अभी स्लोप फॉर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो सपोज आपका पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax काइंड. तो इस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो इस केस में आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं, जनरल a को रिप्लेस कर देते हैं -a से. तो यहाँ पर यदि -a पुट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 by 2a x minus x1. कितना सिंपल है. इफ इक्वेशन पैराबोला is x square is equal to 4ay, then in this case equation of normal is y minus y1 is equal to minus 2a by x1 x minus x1. यदि इसका डेरिवेशन करना तो भी हम सेम टाइप से कर सकते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x x1 is equal to 4a y plus y1 by 2, and then you can find the slope of tangent, and from there you can find slope of normal. Okay, so यदि इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो, तो इस केस में फिर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a बाई x1 x माइनस x1. ठीक है, तो इन जनरल इसका यूज़ होता है, बाकी ज़्यादा आती नहीं है नॉर्मल के लिए. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y
एट एक्स इज इक्वल टू 4. ठीक है, सो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 4 गिवन है बट वाई नहीं दिया गया, तो पहले तो हम वाई फाइंड करते हैं. सो एट एक्स इज इक्वल टू 4, यदि हम 4 पुट करते हैं तो 16 इज इक्वल टू 8y, सो y इज इक्वल टू 2. इट मीन्स वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 4,2. सो अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि यदि आपका पैराबोला हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay काइंड का, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 2a बाई x1 x माइनस x1. ठीक है, तो जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, सो y माइनस पॉइंट इज 4,2, सो y1 इज 2 इज इक्वल टू माइनस 2a. यदि हम इसको कंपेरिजन करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, सो a विल बी इक्वल टू 2, सो 2 डिवाइड बाई x1 इज 4, x माइनस x1 अगेन 4, सो ये कैंसिल हो जाएगा. y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ये हमारा आंसर हो गया. सो आप देख सकते हैं दैट ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ओके, गुड. सो नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म. तो स्लोप फॉर्म में क्या होगा कि आपको स्लोप m गिवन होगा नॉर्मल का, फिर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है. तो सेकंड फॉर्म इज स्लोप फॉर्म. तो स्लोप फॉर्म में यदि आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, then in this case equation of normal y is equal to mx minus 2am minus am cube. And if equation of parabola y square is equal to minus 4ax, then equation of normal will be y is equal to mx plus 2am plus am cube. तो जस्ट क्या करना है, a को रिप्लेस करना है माइनस a से, तो यहाँ माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट. If equation of parabola is x square is equal to 4ay, then equation of the normal with slope m is equal to. तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे हमने टेंजेंट में देखा था ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई को इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पर एक्स आ गया वाई, और m को आपको रिप्लेस करना है 1 बाई एम से. सो x इज इक्वल टू 1 बाई एम इंटू वाई माइनस 2a बाई एम एंड माइनस a बाई एम क्यू. ठीक है, अब यदि पैराबोला हो आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay काइंड का, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, जस्ट आपको a को रिप्लेस करना है माइनस a से, तो a को रिप्लेस कर देते हैं माइनस a से. सो 1 बाई एम इंटू वाई प्लस 2a बाई एम प्लस a बाई एम क्यू. ठीक है, सो यदि आपको फर्स्ट इक्वेशन याद है तो उसकी हेल्प से हम बाकी रिमेनिंग 3 भी फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू. ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर. द क्वेश्चन इज इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू k इज द नॉर्मल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इसको हम कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप ऑफ पैराबोला से. सो a विल बी इक्वल टू 3. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू. For this parabola a is equal to 3. So y is equal to mx minus 6m minus 3m cube. Okay. अब हमारा नॉर्मल क्या दिया गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू के, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के. ओके, ये भी हमारा नॉर्मल की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में, और ये आपको गिवन नॉर्मल है, तो इन दोनों के यदि हम कंपेयर करेंगे सो आपको यहाँ से मिल जाएगा m. सो m इज इक्वल टू -1 हो गया, m -1 हो गया. अब हम कंपेयर करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -6m माइनस 3m क्यूब. ओके, अब यदि हम m इज इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 9. सो आंसर इज सेकंड पार्ट. ओके, कितना इजी क्वेश्चन है. अब हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं इस चैप्टर से, दैट इज़ फोकल कॉर्ड. तो फोकल कॉर्ड के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अ कॉर्ड विच इज़ पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला. बट इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जैसे सपोज आपको क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में पॉइंट ए गिवन होगा एंड पॉइंट बी फाइंड करना होगा, एंड इट विल बी गिवन लाइक इफ ए बी इज़ द फोकल कॉर्ड एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज समथिंग, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी.
इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो ए और बी के पॉइंट में क्या रिलेशन होता है, तो हमने एज्यूम किया ए पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में। सपोज पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax काइंड, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसको हमने बोल दिया ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1, ठीक है। और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम किया ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2, ओके। सो इफ ए बी इज फोकल chord, if AB is focal chord, then what will be the relation between T1 T2? T1 into T2 is equal to -1 or T2 is equal to -1 by T. सो कभी भी आपको इस टाइप से वन पॉइंट गिवन है, सेकंड पॉइंट फाइंड करना है एंड सेकंड पॉइंट इज द अदर एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड करेंगे T1, जो भी पॉइंट दिया गया होगा उसको कंपेयर करके T1 फाइंड करेंगे। जब T1 मिल जाएगा तो T2 फाइंड कर सकते हैं -1 बाई T1, और यहाँ पर T2 का वैल्यू पुट कर देंगे, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ अदर पॉइंट। सो क्वेश्चन इज इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड of the parabola y square is equal to 16x is 1,4, then the length of the focal chord is, same is the 19 का क्वेश्चन है। ओके, तो इस टाइप से कोई पैराबोला है, राइट साइड ओपनिंग, एंड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो यदि हम इसको कंपेयर करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, सो a विल बी इक्वल टू 4, a 4 आ गया। सो लेट अस सपोज अवर AP इज द फोकल कॉर्ड एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट P, और ये हो गया फोकस पॉइंट। तो E पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1,4, और A पॉइंट हमने एज्यूम किया, लेट A पॉइंट इज a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, सो दैट इज इक्वल टू 1,4। यदि हम कंपेयर करें तो वैसे तो हम a t1 स्क्वायर को बोल सकते हैं 1 एंड 2a t1 इज इक्वल टू 4, बट इन जनरल हम कंपेयर करते हैं लीनियर वैल्यू को। इससे क्या होगा कि ओनली t1 की सिंगल वैल्यू आएगी और वही करेक्ट होगा। सो 2a t1 इज इक्वल टू 4, 2a is equal to 4, t1 is equal to 4, so t1 is equal to 1 by 2. If t1 is 1 by 2, and let us suppose coordinate of point P is a t2 square comma 2a t2. So t2 क्या हो जाएगा, t2 देखो, we know that if AB is the focal chord then t2 is equal to -1 by t1. So reciprocal and minus times, so t2 will be equal to -2. तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A is 4 into t2 square, so t2 square minus 2 square 4, comma 2a is 4 and t2 is -2, so coordinate हो गया 16 comma -16, okay। now अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, in this question then the length of this focal chord is, so we need to find the length of chord AB। तो length of chord कैसे find कर सकते हैं, just by using the distance formula। so length AB will be equal to root under 16 minus 1 whole square, so 15 square plus 16 minus 16 minus 4, so minus 20 square, so minus 20 square हो जाएगा 400। तो फाइनली आपको AB मिल जाएगा 25, सो AB इज 25। अब इस पर कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिफरेंट फोकल कॉर्ड पर, A पॉइंट गिवन हो, B पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, A पॉइंट गिवन हो, B पॉइंट पर टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करना हो, A पॉइंट गिवन हो, B पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना हो। इस टाइप से क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले A पॉइंट की हेल्प से हम B पॉइंट फाइंड करेंगे एंड देन फिर जो भी रिक्वायर्ड होगा उसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस टाइप से मैंने ट्राई किया है कि आपको कम से कम टाइम में इस चैप्टर का रिविजन कराया जा सके। तो अराउंड 1.5 आवर या फिर उससे भी कम टाइम में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया।